morning, students. We are nowadays learning active and passive voice. Yesterday, we had learnt active and passive voice forms of the sentences present perfect and past perfect tenses. Today, we will learn active and passive voice forms of the sentences simple future and future perfect tense. And I have already told you that active voice of the sentences of present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, future continuous or progressive tense, and sentences which are having intransitory verbs have not been changed into passive forms, isn't it? Now they are the rules. So today we will see one by one simple future and future perfect tense. Now see simple future tense. You see the first example. Kangana will sing a song. Kangana is subject, will is helping verb, sing is main verb, a song is object. So this is subject, helping verb, V1 and object. It means subject, verb, object, karta, kriyapad, karma, active voice. Now it will be changed into passive, that object, then will or shall, because that is future tense. Then in simple future tense, along with shall and will, we place or take be, then V3, then by, then subject. Now how it will be changed, this sentence? Here object is a song. A song is object. So here it is kept a song. A is capital. Here it is a song. A is in the middle of the sentence, so it is smaller, and here it is at the beginning, initial position, so it is in capital form, a song. Then here is will, so we will take will be. If here is shall, then we shall have taken shall be, but here will is there, so will be. Then sings, V3 is sung. जैसे go, went, gone, write, wrote, written, take, took, taken. Similarly sing, sang, sung, है ना? Mary sings a song, simple present tense. Mary sang a song. Now here simple future, Mary will sing a song. सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ क्या रहता है, कर्ता, क्रियापद का पहला रूप और फिर कर्म. मेरी सिंग्स अ सॉन्ग, या तो कंगना सिंग्स अ सॉन्ग. और सिंपल पास्ट टेंस में क्या रहता है, कर्ता के बाद जो क्रियापद रहता है उसका दूसरा रूप पास्ट टेंस. तो कैसे आता है, कंगना सैंग अ सॉन्ग. ये फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर है, इसलिए विल या तो शॉल. इसमें अभी हम जो शॉल विल लेते हैं ना, तो एक्चुअली देयर इज व्हेन दैट एक्शन इज गोइंग टू हैपन डेफिनेटली, देन वी टेक विल, एंड इफ there is no guarantee of happening of the action, then we take shall. And secondly, we also take shall when there is a sentence of command or imperative sentence, then we also take shall there. It means you shall kill him, तुम उसको मारेगा, this is my order, you shall kill him. So this is order sentence.
So in order sentence, shall is taken, and I will go to Mumbai. मैं मुंबई जाऊंगा. I shall go to Mumbai. मैं मुंबई जाऊंगा. दोनों का मैं मुंबई जाऊंगा, लेकिन आई विल गो टू मुंबई इसका मतलब मैं डेफिनेटली मुंबई जाऊंगा. आई शैल गो टू मुंबई मतलब मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, नो गारंटी. तो गारंटी है तो विल ले लो, और बाद में अगर गारंटी नहीं है तो शॉल लो. और दूसरा शॉल कब लेते हैं, जब कोई ऑर्डर है, हुकुम है. जैसे टीचर ने बोला, यू शॉल कंप्लीट योर ऑल होमवर्क्स, दिस इज टीचर्स ऑर्डर, देन शॉल इज टेकन देयर. राइट. राइट. सो हियर ऑब्जेक्ट कंगना विल सिंग अ सॉन्ग, इसमें कर्ता क्रियापद कर्म. तो ये रचना ऑब्जेक्ट प्लस शॉल विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट. जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ये जो हम सब टेंसेस देख रहे हैं उन सभी में, और ये दोनों में भी आज जो पढ़ने वाले, उसमें एक्टिव का पैसिव करते समय ऑब्जेक्ट, बाद में हेल्पिंग वर्ब, बाद में V3, बाय और सब्जेक्ट, ये जो रचना है वो सेम है. सिर्फ इधर जो हेल्पिंग वर्ब रहता है ना, उसमें ही चेंज होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का करता है तो चेंज एम आर इज. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का करता है तो एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग. राइट. प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हैज बीन, हैव बीन. सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस का कैसे, was या तो वेयर और फिर क्रियापद का तीसरा रूप. प्रोग्रेसिव है पास्ट टेंस तो was being या तो were being और फिर V3. और पास्ट परफेक्ट है तो had been फिर V3. और सिंपल फ्यूचर में क्या रहता है, शॉल और विल उसके साथ में प्लस बी प्लस V3 फिर बाद में बाय सब्जेक्ट. तो इस रचना के तहत कैसे आया, ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग और शॉल विल. और मोस्टली व्हाट हैपन्स, इफ दैट सेंटेंस हैज विल then you take will be, if there is shall then you take shall be. Right. So Kangna will sing a song, ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग तो अ सॉन्ग लिया. इधर अ सॉन्ग में ए अंदर है इसलिए वो छोटा है. अ सॉन्ग यानी अ का मतलब एक, एक वचनी. ए क्या दर्शा रहा है, एक वचनी. अ सॉन्ग यानी एक गाना, और इधर फिर ए को कैपिटल कर दिया, क्योंकि जब whenever any sentence begins in English then it takes capital letter at the initial position. So here a song will be, बाद में V3 sing का sung, sing sang sung, फिर बाद में by, फिर सब्जेक्ट. इधर सब्जेक्ट नाउन है इसलिए वो जैसे का वैसा. इधर आई रहता तो फिर बाय के बाद मी आता, वी रहता तो बाय के बाद अस, सिंगुलर प्लूरल यू रहता तो यू, ही है तो हिम, शी है तो हर, ईट है तो ईट, दे है तो देम. सिंगुलर प्लूरल जो नाउन रहेगा वो आएगा. जॉन होगा तो जॉन, कंगना है तो कंगना, और बहुत सारे हैं, जॉन, कंगना, जॉर्ज एंड विलियम. तो फिर बाय के बाद वो सभी लेना पड़ता है, बाय जॉर्ज, जॉन, कंगना एंड विलियम. फिर ऐसा a song will be sung by जॉर्ज, विलियम, कंगना एंड विलियम, ऐसा. तो अभी ये देखो ये भी वैसे ही है, शी विल डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स, वो चॉकलेट बांटेगी. इसका वही रचना है इसका जैसा. तो कैसे आएगा, कर्म क्या है, चॉकलेट्स. इधर सी छोटा है, इधर शुरुआत में क्या, सी कैपिटल. चॉकलेट्स विल है, विल बी, चॉकलेट्स विल बी. डिस्ट्रीब्यूट का डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड. तो डिस्ट्रीब्यूट का तीसरा रूप डिस्ट्रीब्यूटेड, बाय, और फिर शी का आया हर. तो इसका कैसे हुआ, चॉकलेट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर. बाद में
द बर्ड्स विल नॉट ईट दोज कुकीज, है ना। तो फिर इधर द बर्ड्स करता है, विल हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव सेंटेंस है, ऊपर के पॉजिटिव सेंटेंस है दोनों, ये नॉट नेगेटिव है, ईट है, फिर दोज कुकीज, इधर कर्म क्या है, दोज कुकीज, फिर दोज कुकीज का कैसे आया, दोज कुकीज विल नॉट बी ईटन बाय द बर्ड्स। ये जैसा है ना, अ सॉन्ग विल बी sung by कंगना, चॉकलेट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर, विल बी या तो शाल बी, है ना। और जो क्रियापद है उसका V3, तो वैसा विल बी या तो शाल बी, और जो क्रियापद है उसका V3, तो विल बी संग, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इधर ईट है तो विल नॉट बी ईटन, ईट एट ईटन, ईट एट ईटन, नेगेटिव है इसलिए विल नॉट बी ईटन। अभी शॉल बी विल बी रहता ना, जैसे हैज़ बीन हैव बीन, वो दोनों के बीच में नॉट डालते हैं, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। इसी तरह से शाल बी और विल बी दोनों के बीच में नॉट डालने का, जैसे इधर दिया है आंसर में, राइट, हाँ, इधर दिया है दोज कुकीज विल नॉट बी ईटन बाय द बर्ड्स, इस तरह से, हाँ ठीक है। नाउ सी, वी शैल नॉट विजिट द हिल स्टेशन, इसका भी निगेटिव है। बाकी ये कंगना विल सिंग अ सॉन्ग, शी विल डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स, इसका जैसा कर्म, फिर शाल बी विल बी V3 बाय सब्जेक्ट, वैसे ही है, सिर्फ नॉट जो है वो इसीलिए थोड़ा सा निगेटिव हो गया, और वो नॉट को क्या करना, शाल बी और विल बी ये दोनों के बीच में रखना। देखो इधर आया विल नॉट बी ईटन, तो विल और बी के बीच में नॉट है, राइट। नाउ से ये भी वैसे ही है, वी शॉल नॉट विजिट द हिल स्टेशन, कर्म पहचानने का, हिल स्टेशन, द हिल स्टेशन, सिर्फ हिल नहीं, जैसे सापुतारा हिल स्टेशन है ना, घूमने फिरने का, द हिल स्टेशन, तो इधर द छोटा है टी, इधर कैपिटल हो जाएगा बिगिनिंग पोजीशन में, द हिल स्टेशन, शॉल विल, इसमें शॉल दिया है इसलिए शॉल लिया, ब्लैंकेट होगा तो ब्लैंकेट लेंगे, मतलब व्हील होगा तो व्हील, isn't it, just making fun, but if shall is there then take shall be, if there is will then take will be, but negative not is there, then here the hill station object, the hill station shall है इसलिए shall be, और नेगेटिव है इसलिए not, है ना, shall not be, तो द हिल स्टेशन शॉल नॉट बी, क्रियापद विजिट है उसका V3 विजिटेड, विजिट विजिटेड विजिटेड। यू स्टूडेंट्स शुड learn more and more three forms of the verb, understand, go went gone, write wrote written, take took taken, give gave given, eat ate eaten, see saw seen, ऐसा। इसी तरह विजिट का विजिटेड विजिटेड, राइट, विजिट का विजिटेड विजिटेड, फिर बाय, और सब्जेक्ट क्या है इधर वी, तो वी का बाय के बाद क्या आया, चेंज अस, क्योंकि मैंने बोला है इधर आई होगा तो फिर बाय मी, वी होगा तो अस, दोनों यू होगा सिंगुलर प्लूरल यू तो यू, ही होगा तो हिम, शी होगा तो हर, इट होगा तो इट, दे होगा तो देम, और किसी का नाउन है, नाम है, जॉर्ज सुनील किशोर, एक है तो एक, बाय जॉर्ज, बहुत सारे होंगे सुनील किशोर जॉर्ज एंड विलियम, तो फिर वो सभी लेने का बाय के बाद, ऐसा। ये देखो अभी, विल द नेक्स्ट अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय द सिटी, दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आई मीन अ सेंटेंस ऑफ क्वेश्चन, question mark is put up there at the end. Now will the next earthquake destroy the city? Previously also we have seen in each and every type of sentence we are learning positive simple sentence, then your negative sentence and a sentence of question. So here is also, will the next earthquake destroy the city, तो ये
क्वेश्चन में क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब, तो इधर विल आया, विल या तो शॉल, विल द नेक्स्ट अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय द सिटी। क्वेश्चन में क्या रहता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में रहता है, फिर करता, द नेक्स्ट अर्थक्वेक करता, ये हेल्पिंग वर्ब, डिस्ट्रॉय क्रियापद, द सिटी क्या है, कर्म, और क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन का है। तो विल द नेक्स्ट अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय द सिटी, इसका प्रश्न का इसमें कैसे चेंज होगा, वही विल और विल या तो शॉल प्लस ऑब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट क्या है, द सिटी, फिर बी, फिर क्रियापद का V3, फिर बाद में बाय, और फिर बाद में सब्जेक्ट, और फिर बाद में क्वेश्चन मार्क। इधर ये प्लस कोई देने की जरूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा हो गया अननेसेसरीली। हाँ सी, तो फिर इसके जैसे इसका कैसे चेंज होगा, ये विल है तो इधर विल लिया, कर्म द सिटी है तो द सिटी लिया, है ना, हेल्पिंग ऑफ विल है, सहायकारी क्रियापद हेल्पिंग वर्ब विल है तो विल लिया, द सिटी है तो द सिटी, बाद में बी, क्योंकि हम क्या करते हैं, शाल बी विल भी लेते हैं, लेकिन प्रश्न में क्या हो जाएगा, सिर्फ विल या तो शॉल शुरुआत में आएगा, फिर बाद में कर्म आएगा, फिर बाद में बी लेने का, जैसे शाल नॉट बी, विल नॉट बी, शाल बी और विल बी के बीच में नॉट डालते हैं। इसी तरह से प्रश्नार्थी वाक्य का विल द नेक्स्ट अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय द सिटी, इसका अगर पैसिव प्रश्न बनाना है तो विल बी शाल बी, इसके बीच में यह कर्म डालना पड़ेगा, विल बी और शाल बी के बीच में क्या डालना पड़ेगा, कर्म, तो इधर कर्म है द सिटी, और हेल्पिंग वर्ब विल, उसका W कैपिटल, विल द सिटी बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय का तीसरा रूप, डिस्ट्रॉय पहला, पास्ट टेंस डिस्ट्रॉयड, और तीसरा भी डिस्ट्रॉयड। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन verb forms there are number of verbs have second and third form the same, just like here, destroy, destroyed, destroyed, look, looked, looked, walk, walked, walked, talk, talked, talked, like this, right? तो will the city be destroyed, destroy का थर्ड फॉर्म destroyed, सेकंड फॉर्म भी वही है destroyed, फिर by, destroy का V3 लिया destroyed, फिर by लिया, और इसमें करता क्या है, द नेक्स्ट अर्थक्वेक, इतना बड़ा करता है वो लास्ट में लिया, और क्वेश्चन मार्क। अब ये देखो नेक्स्ट सेंटेंस यू सी, है ना, shall we meet them, हेल्पिंग वर्ब शॉल, करता वी, और V1 मीट। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें मेन वर्ब आता है, मेरी सिंग्स अ सॉन्ग, कंगना विल सिंग अ सॉन्ग, तो मेरी के बाद V1 सिंग्स आया, इधर भी विल या तो शॉल के साथ में क्या आएगा, अपना सिंग आएगा, इधर कंगना शाल सिंग अ सॉन्ग और कंगना विल सिंग अ सॉन्ग, तो शॉल या तो विल कोई भी आ सकता है एक्टिव वॉइस में, लेकिन मेन वह भी आएगा, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में है मेरी सिंग्स अ सॉन्ग, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस होगा तो क्या होगा, V2 या तो पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मतलब कैसे होगा ये, कंगना सैंग अ सॉन्ग, राइट। नाउ सी, ये हम ये सेंटेंस देख रहे थे, sentence number 6, shall we meet them, this is also interrogative sentence like above, will the next earthquake destroy the city, इसके जैसा ही ये प्रश्नार्थी वाक्य है, shall we meet them, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब shall या तो will, फिर बाद में प्रश्न पूछने में SR नो टाइप क्वेश्चन में कोई भी हेल्पिंग वर्ब रहता, फिर सब्जेक्ट रहता, फिर V1 रहता, फिर लास्ट में कर्म रहता है, तो ये देम कर्म है,
राइट। हेल्पिंग वर्ब विल या तो शॉल, है ना। हाँ, तो ये जो है ना, ये जो क्या बोलते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, शैल वी मीट देम, तो उसमें विल या तो शॉल, फिर बाद में ये ऑब्जेक्ट, फिर बी, V3 बाय सब्जेक्ट। इस तरह से शैल वी मीट देम, इसका जो है वो कैसे आएगा, शैल दे बी मेड बाय अस, मतलब विल या तो शॉल, फिर बाद में ऑब्जेक्ट, फिर बी, V3 बाय सब्जेक्ट। तो इधर शॉल दिया इसलिए शॉल लिया, शॉल। देम है, देम का इधर कर्ता के पोजीशन में देम का दे हो जाएगा। जैसे हम इधर वी का बाय अस लेते हैं, आई का बाय के बाद मी लेते हैं, वैसे इधर कर्म आय है तो मी लेने का, इधर पैसिव में शुरुआत में। वही वी है तो मतलब अस है तो वी लेने का, मी है तो आई लेने का, यू है तो यू लेने का, हिम है तो ही लेने का, हर है तो शी लेने का, ईट है तो ईट लेने का, और देम है तो फिर दे, इसलिए फिर शाल दे और बी, शाल बी विल बी, शाल बी, उसमें ये कर्म डाला, फिर मीट का दूसरा और तीसरा रूप मेट, फिर बाय, और फिर वी का हो गया अस, इस तरह से। अंडरस्टैंड। अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका भी वैसे ही है, दे विल हैव सोल्ड देयर हाउस। इसमें क्या है, जैसा प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या तो हैव क्रियापद का तीसरा रूप, पास्ट परफेक्ट में हैज़ हैव उसका पास्ट टेंस हैड, फिर क्रियापद का तीसरा रूप। यही वाक्य कैसे रहता है, ये अभी फ्यूचर परफेक्ट का है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या रहता है, शॉल या तो विल, हैव, फिर क्रियापद का तीसरा रूप। ये बीन तो ये पैसिव रचना है, लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो वाक्य है, दे हो गया कर्ता, विल हैव या तो शैल हैव, फिर क्रियापद का तीसरा रूप सेल का तीसरा रूप सोल्ड, फिर देयर हाउस, ये कर्म हो गया। कर्ता दे, विल हैव या तो शैल हैव हेल्पिंग वर्ब, और V3 क्रियापद का तीसरा रूप सेल का तीसरा रूप है सोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड, और देयर हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट है, कर्म है। और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में भी ऐसा ही है, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या तो हैव और फिर क्रियापद का तीसरा रूप। तो ये वाक्य कैसे रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट में दे विल हैव सोल्ड देयर हाउस का प्रेजेंट परफेक्ट कैसा होता, दे हैव सोल्ड देयर हाउस। और यही वाक्य पास्ट परफेक्ट में कैसा रहता, हैव हैज़ का पास्ट टेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब का हैड, तो फिर ये कैसे होता, दे हैड सोल्ड देयर हाउस। लेकिन अभी ये विल हैव शैल हैव क्यों है, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट है, इसीलिए इधर विल हैव लो या तो शैल हैव ले, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको कोई फिक्स क्रिया करनी है तो विल ले लो, क्रिया फिक्स नहीं बताना है तो शॉल ले लो, या कोई कमांड आदेश का वाक्य है तो शॉल ले लो, ऐसा। दे विल हैव सोल्ड देयर हाउस, फिर इसका पैसिव कैसे होगा, ऑब्जेक्ट शाल या तो विल, हैव प्लस बीन, V3 बाय सब्जेक्ट। अभी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों का जब हम पैसिव करते हैं, थोड़ा हेल्पिंग वर्ब की साइज बढ़ जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ बीन, हैव बीन और क्रियापद का तीसरा रूप। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड बीन प्लस V3। अभी फ्यूचर परफेक्ट में और थोड़ी सी ये हेल्पिंग वर्ब का साइज बढ़ गया, शाल या तो विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। इट मीन्स शाल हैव बीन या तो विल हैव बीन और फिर V3, और बाय सब्जेक्ट वो तो सेम है, सेंटेंस पैटर्न इज द सेम,
in active and passive, isn't it? Object plus shall oblique will, oblique मतलब और, प्लस हैव, इधर हैव ही लेना है, हैज़ नहीं लेना। शॉल और विल के बाद में हैज़ नहीं लेना। ये फ्यूचर परफेक्ट में शॉल और विल के साथ में हैव आता है, फिर बीन आता है, लेकिन हैव के अलावा हैज़ लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, वो नहीं चलेगा, क्योंकि शैल हैव बीन या तो विल हैव बीन, हैज़ बीन हैव बीन वो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में है। ऑब्जेक्ट प्लस शॉल या तो विल प्लस हैव प्लस बीन, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? देयर हाउस, देयर हाउस ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट लिया। शैल या तो विल लिया, हैव बीन लिया। सोल्ड का V3 सोल्ड, फिर बाय लिया, फिर दे का क्या चेंज हुआ? देम। आई रहता तो इधर बाय मी, वी रहता तो बाय अस, देन यू रहता तो बाय यू, ही रहता इधर, ही विल हैव सोल्ड देयर हाउस बाद में, तो फिर बाय हिम। शी रहता तो बाय हर, ईट रहता तो बाय ईट, दे रहता तो बाय देम, तो दे है इसलिए बाय देम। किसी का एक क्वेश्चन अनेक क्वेश्चन नाम रहता तो वो नाम जैसे के वैसे लेने का, जॉर्ज हो, सुनीता हो, एक हो या बहुत सारे हो, वो जैसे के वैसे लेने। अभी ये वाक्य देखो, द चिल्ड्रन विल हैव सीन द शो, ये भी ऐसा ही रचना है उसके जैसा, लेकिन इधर पहले ये कर्म है ऑब्जेक्ट, तो द शो ऑब्जेक्ट हो गया। और इधर के वाक्य में विल है ऊपर के जैसे, तो फिर विल हैव बीन ले लिया द शो कर्म के साथ में। सीन का तीसरा रूप सीन ही है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट टेंस रहता तो उसमें ऑलरेडी V3 रहता है, तो वो जैसे के वैसे लिया। फिर बाय, और कर्ता नाउन है द चिल्ड्रन, एज इट इज़ लिया। प्रोनाउंस रहता है तो ही चेंज होता है ऑब्जेक्टिव केस उसका, आई का, मी, वी का, ऐसा जो बताया वो। अभी देखो ये निगेटिव का है, आई विल नॉट, शॉल नॉट, लेकिन विल नॉट का कंजेस्टेड फॉर्म जो है ओंट है ऐसा, और शॉल नॉट का शैंट है। तो आई विल नॉट हैव डन माई होमवर्क, ऐसा ये इधर फ्यूचर परफेक्ट का दिया है। ऊपर के जैसे ही करना है, समझ में आया क्या? ये ऊपर के जैसे ही है, ऊपर के जैसे ही है, सिर्फ इसमें क्या है, नॉट दिया है। तो शॉल विल जो होगा वो, और बाद में नॉट लेना, फिर बाद में हैव बीन लेना। नॉट को कहाँ लिखेंगे? NOT नॉट को, नेगेटिव को कहाँ लिखेंगे? शॉल विल जो कुछ होगा उसके बाद नॉट लिखने का, फिर बाद में हैव बीन लिखने का। तो फिर इसके जैसा ऑब्जेक्ट शॉल या तो विल, नॉट प्लस हैव प्लस बीन, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका कैसे चेंज हुआ? ऑब्जेक्ट क्या है इधर? ऑब्जेक्ट क्या है भाई? तो ऑब्जेक्ट है इधर माय होमवर्क, तो माय होमवर्क ऑब्जेक्ट लिया। वाक्य में विल है, इधर अगर शॉल रहता विल के अलावा, तो फिर इधर हम शॉल लेते, शॉल नॉट। समझ में आ रहा ना? इधर विल है इसलिए विल नॉट, शॉल रहता है तो शॉल नॉट, मतलब नॉट ऑलरेडी दिया है, तो विल नॉट का ओंट भी लिख सकते हैं, WON''T, और शॉल नॉट का शैंट, SHAN''T। और फिर माई होमवर्क विल नॉट हैव बीन डन बाय मी, डन है V3, किसका डन V3 है? वो डू का, डू डीड डन, अंडरस्टैंड? तो डू डीड डन, इसमें का डन हो गया बाय, और आई है इसलिए उसका चेंज मी हो गया। ये भी वैसे ही है निगेटिव, रवि विल नॉट हैव टेकन द मेडिसिन, तो इसका कैसा? द मेडिसिन विल नॉट हैव बीन टेकन बाय रवि। अभी ये देखो थोड़ा नेक्स्ट, प्रश्नार्थी। हम हर एक इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और प्रश्नार्थी रचने का पैसिव बना रहे हैं। तो अभी विल दे हैव स्पोकन इन फ्रेंच, तो इसमें शाल है तो विल शुरुआत में आएगा, फिर करता, फिर बाद में हैव, है ना, और फिर बाद में V3। स्पोकन, स्पीक का तीसरा रूप स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, और फ्रेंच, है ना। ये फ्रेंच जो है ये क्या है? कर्म है, ऑब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन मार्क। तो विल दे हैव स्पोकन फ्रेंच, जैसे पहले देखा ना सिंपल फ्यूचर का,
तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में रहता है, फिर करता, ये विल दे हैव स्पोकन फ्रेंच है ना, तो ये कर्तरी प्रयोग का वाक्य है एक्टिव का। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में, फिर करता, फिर और हेल्पिंग वर्ब का कोई फॉर्म होगा वो स्पीक का तीसरा रूप V3 है, और ये कर्म है। तो ये क्रियापद, कर्ता, V3 और कर्म, ये हो गया एक्टिव है इसका क्वेश्चन का वाक्य, इसलिए हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में यस नो टाइप है। WH रहता तो क्या होता है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ऐसा। और फिर इसके जैसा अभी क्वेश्चन में ही चेंज करना है, शॉल विल जो होगा वो, विल है तो विल, शॉल होगा तो इधर शॉल, तो शॉल विल जो होगा वो शुरुआत में लेना। फिर ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, बीन इधर ये जो है ना शैल हैव बीन, विल हैव बीन, वो इधर पैसिव करते समय लगता है फ्यूचर परफेक्ट का। एक्चुअली बी ये जो है ना बीन, बीन भी जो है ये किसका तीसरा रूप है, जो टू बी है, टू बी, टू बी फर्स्ट फॉर्म गो जैसा। फिर वॉज वेयर पास्ट टेंस जैसे वेंट है, और गो का तीसरा रूप क्या है, गॉन। इसी तरह टू बी का तीसरा रूप बीन है, लेकिन इधर शैल हैव बीन, विल हैव बीन वो हेल्पिंग वर्ब के स्वरूप में आया है। फिर बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन, तो विल दे हैव स्पोकन फ्रेंच, इसमें का शाला तो विल, फिर बाद में कर्म फ्रेंच, बाद में हैव, बीन, बाय और दे का देन। इस तरह से क्या हो गया, विल दे हैव स्पोकन इन फ्रेंच, विल फ्रेंच हैव बीन स्पोकन बाय देम, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन का सेंटेंस इसलिए क्वेश्चन मार्क। अभी एक देखो, विल दे हैव सोल्ड हिज बाइक, इसका क्वेश्चन का कैसे आया, विल हिज बाइक हैव बीन सोल्ड बाय देम। विल या तो शॉल इधर आता ही है, विल है तो विल, शॉल रहता तो फिर इधर अगर शॉल रहता, शॉल दे हैव सोल्ड हिज बाइक, तो फिर इधर क्या आता, शॉल हिज बाइक हैव बीन सोल्ड बाय देम, ऐसा जो है वो क्रियापद लेना। तो शॉल या तो विल, फिर सब्जेक्ट दे, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, विल हैव, वो प्रेजेंट परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव रहता है प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन पैसिव करते समय शैल हैव बीन या तो विल हैव बीन। फिर V3 सेल का तीसरा सोल्ड, और हिज बाइक कर्म। तो अभी ये क्वेश्चन फॉर्म है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, शैल या तो विल, इधर विल है इसलिए विल लिया। कर्म हिज बाइक है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्म क्या है, हिज बाइक। फिर बाद में बाकी का विल हैव बीन और शैल हैव बीन का, उसमें का विल या तो शॉल शुरुआत में आ गया, फिर हैव, फिर बीन है ना, इधर दिया ना हैव बीन, तो फिर ये हैव बीन ले लिया है ना, तो ये हैव बीन ले लिया इधर, और ये शॉल विल में से शुरुआत में आ गया। फिर ये शॉल विल के बाद जो विल है तो विल लिया, फिर बाद में इस बाइक कर्म लिया, और हैव बीन वो हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ पार्ट जो है वो है। फिर सेल का तीसरा रूप सोल्ड, फिर बाय लिया, और दे का चेंज देम होता है, ये तो मैंने बताया। इधर आई है तो फिर बाय मी, वी है तो बाय अस, यू है तो बाय यू, दे है तो बाय देम, ही है तो बाय हिम, शी है तो बाय हर, ईट है तो ईट। नाउन होगा एक वचन अनेक वचन, तो जैसा होगा वैसा, एक वचन है तो एक वचन, अनेक वचन है तो अनेक वचन। तो अभी देखो ये 10 सेंटेंस अभी ये सब मिक्स किया है। मिक्स किया मतलब क्या मिक्स किया है, इसमें अभी जितने टेंस पढ़ा है ना उसमें का फ्यूचर भी है ना, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, इसके आपके लिए जो दिए हैं वो दोनों के सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट के सिंपल नेगेटिव क्वेश्चन ऐसे सेंटेंस है, इनको पैसिव में करके लाना है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट के हैं तो वो करके लाना है। थैंक यू।